Yes, people. चलिए, ऑल ऑफ यू शुड बी रिवाइजिंग विथ मी. सबकी आवाज आनी चाहिए एकदम केयरफुली. जितना आप लोग अभी याद रख करते हैं उतना ही आपका कंफर्टेबली पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा. यहीं पे याद हो कि आप ही की आवाज में आपको रिवीजन में रहेगा. ये वीडियोस आपके पास अवेलेबल रहेंगे विद अनलिमिटेड व्यूज, काइंड ऑफ यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपके पास मिल जाएंगे. आप जितनी बार चाहें उतनी बार इन वीडियोस को देख पाएंगे. आपको पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज रहेगा, याद रहेगा. चलिए, वी स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट. हम पर्पस वगैरह में नहीं जा रहे हैं, हम लोग सीधा आ रहे हैं ऑन द फर्स्ट डेफिनेशन, दैट वाज कॉर्पोरेटाइजेशन. द कीवर्ड वाज so what is corporatization? It is the succession of stock exchange which was earlier in the form of or society under act, which is converted into stock exchange in the form of a for the purpose of the business of in securities. Life is easy. अब मैं बोलूंगा, सब लोग ध्यान से सुनेंगे. The definition of corporatization is what? Corporatization means succession of stock exchange which was earlier in the form of body of individual or society under Societies Registration Act 1860 into a stock exchange which is in the form of a company for the purpose of assisting, regulating, controlling the business of buying, selling, dealing in securities. As easy as that. चलो, फिर आता है demutualization. कीवर्ड क्या है? Segregation. तो demutualization means segregation of what? With trading right in accordance with scheme approved by SEBI. Chalo, what is demutualization? Demutualization means segregation of ownership and management from trading rights in accordance with the scheme approved by SEBI. Easy. फिर आता है हमारा spot delivery contract. Spot delivery contract means a contract which provides for a actual payment and delivery which takes place either on the or on the next day. अगर बायर सेलर अलग अलग सिटी में है तो जो टाइम टेकन इन पोस्ट इज इग्नोर्ड. ओके, इफ द शेयर्स आर डेल्ट इन बाय डिपॉजिटरी, देन व्हेन द डिपॉजिटरी ट्रांसफर्स द शेयर्स फ्रॉम वन बेनिफिशियल ओनर्स अकाउंट टू अनदर बेनिफिशियल ओनर्स अकाउंट. एक और बार, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट refers to a contract which provides for a actual payment and delivery of securities either on the or on the next day. टाइम टेकन इन पोस्ट इज कंप्लीटली इग्नोर्ड. उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है इसी के अंदर, इफ द शेयर्स आर डेल्ट इन बाय डिपॉजिटरी, देन व्हेन द डिपॉजिटरी ट्रांसफर्स द शेयर्स फ्रॉम वन बेनिफिशियल ओनर्स अकाउंट टू अनदर बेनिफिशियल ओनर्स अकाउंट. खत्म हो जाती बात. फिर आता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज मींस ए एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, रुकना, बी एनी बॉडी कॉर्पोरेट. पर हम ए के अंदर डिटेल में जाते हैं. एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर incorporated or not constituted prior to before corporatization and demutualization. Okay, body of individual की बात करता हूं तो whether incorporated or not constituted prior to corporatization, demutualization, before corporatization, demutualization, or a body corporate under Companies Act 13 whether under a scheme of corporatization, demutualization or otherwise. Are we getting a fair idea? एकदम इजी पीसी. और इसके बाद में गीत वही गाएंगे हम लोग. तो अभी स्ट्रक्चर कैसा हो गया? स्टॉक एक्सचेंज मींस अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और अ बॉडी कॉर्पोरेट व्हिच इज फॉर द पर्पस ऑफ वापस असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग, डीलिंग इन सिक्योरिटीज. लाइफ इज इजी. फिर आता है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. कुछ खास नहीं है यहाँ पे. रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज मींस स्टॉक एक्सचेंज इज रिकॉग्नाइज फॉर द टाइम बीइंग. जो फॉर द टाइम बीइंग रिकॉग्नाइज हो गया उसे कहते हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. लाइफ इज इजी. फिर आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी. Government security means a security created and issued whether before or after the commencement of the act for the purpose of raising a public loan. तो ध्यान रखना, government security means what? A security created or issued whether before or after the commencement of this act for the purpose of raising a public loan. Sir, main part तो भूल गए क्या? Which is issued by central government or a state government. ये तो हम भूलने ही नहीं वाले. Government security refers to a security created and issued whether before the commencement of this act or after the commencement of this act and by central government, state government for the purpose of raising a public loan. It is also known as gilt-edged security. कोई प्रॉब्लम? डेरिवेटिव हमारा ड्यू है. एकदम इजी है. डेफिनेशन सबके दिल में उतर रही है. It's damn very easy. परेशान होने की बात ही नहीं है. फिर आता है रिकॉग्निशन. रिकॉग्निशन आप सब गधे एक पार्ट भूल जाते हो, ये वाला.
ये वाला पार्ट सबको स्ट्रक्चर याद है बस कि कभी भी अगर कंपनी को रिकॉग्निशन लेना है तो कंपनी एप्लीकेशन देती है अलॉन्ग विद बायलॉज एंड रूल्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट तीन चीजें देखेगा, वेदर द बायलॉज एंड रूल्स आर इन कंफर्मिटी विद द कंडीशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वेदर द स्टॉक एक्सचेंज इज रेडी टू अग्री विद further conditions, and third, whether it is in the interest of trade and public interest. If central government is satisfied, then central government gives recognition and publishes in the official gazette of India and the state. यहां तक सबको याद है, बट आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि जब एप्लीकेशन दिया जाता है उसके साथ में दो चीजें दी जाती है, बायलॉज एंड रूल्स. बायलॉज दिए जाते हैं फॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, बायलॉज फॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. अरे एससीआरए क्या है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, कि सिक्योरिटीज के कॉन्ट्रैक्ट को कैसे रेगुलेट करने वाले हैं. तो बायलॉज में लिख के देना है कि फॉर द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट करोगे, कंट्रोल करोगे. For the regulation and control of contracts, for the regulation and control of contracts, bylaws and rules देंगे in general with respect to constitution of stock exchange and specifically, particularly with respect to three people: governing body, office bearers and इन तीनों के बारे में आप साथ में देंगे. एकदम इजी पीसी. तो ये हो जाता है पूरा रिकॉग्निशन का प्रोसेस कंप्लीट. इसके बाद में अगर ये तो रिकॉग्निशन दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रिकॉग्निशन विड्रॉ भी कर सकती है. यस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड, पब्लिक इंटरेस्ट टू विथड्रॉ द रिकॉग्निशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्निशन को विड्रॉ भी कर सकती है. अभी क्लियर? चलिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन विड्रॉ करना, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देता है? सबसे पहले रिटन नोटिस, उनको मिलता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट के अंदर पब्लिश करके क्या कर लेता है? विड्रॉ. दैट्स डैम इजी. ठीक है, बहुत ज्यादा इजी चल रहा है, बहुत ज्यादा इजी है. ये पूरा आपका विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन हो गया. यस, इसके बाद में आता है बहुत ज्यादा आसान सा टॉपिक, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज सेबी अंडर एससीआरए. सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर की. बहुत सारी पावर है. सबसे पहली पावर है टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न एंड डायरेक्ट इंक्वायरी. इसका मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे कंपनी से पीरियोडिकल रिटर्न्स मांग सकती है, एनुअल, क्वार्टरली, हाफ ईयरली पीरियोडिकल रिटर्न्स मांग सकती है. दूसरा, डायरेक्ट इंक्वायरीज. तो ऑलरेडी ऑर्डर किया गया है कि स्टॉक एक्सचेंज और उसके ब्रोकर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रखनी है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने के लिए कभी भी वो इंक्वायरीज भी ऑर्डर कर सकते हैं. सो द फर्स्ट पावर इज टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न, मेक डायरेक्ट इंक्वायरीज. ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट दैट इन द एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल कम, बताओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स अंडर एससीआरए. नहीं आता ऐसा क्वेश्चन कभी भी, लेकिन हम एक बार देख के जाते हैं, अगर ऐसा भी क्वेश्चन है तो हम हैंडल कर पाए, बट ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है. अब उसके बाद में आता है सेकंड पावर, टू डायरेक्ट रूल और टू मेक रूल्स. तो यहां पे सिंपल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है कि वो जब चाहे स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स को बना भी सकती है और अमेंड भी कर सकती है. नेक्स्ट इज टू सुपरसीड गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कभी भी लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड पब्लिक इंटरेस्ट कि जो गवर्निंग बॉडी काम कर रही है इसको निकाल देना चाहिए या फिर यहां पे किसी व्यक्ति को निकाल देना चाहिए, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं रिटर्न नोटिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद में सुपरसीड कर सकते हैं, उनकी गवर्निंग बॉडी को चेंज कर सकते हैं कि जो आपके मैनेजमेंट संभाल रहे हैं वो सही नहीं है. टू सस्पेंड द बिजनेस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक. अगर लगता है तो हम सस्पेंड कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को भी. नेक्स्ट, टू इशू डायरेक्शन. अगर कभी भी लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शन, ऑर्डर डायरेक्शन टू एनी स्टॉक एक्सचेंज कि आप ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर एनी स्टॉक एक्सचेंज टू डू समथिंग. दैट इज व्हाट वी मीन बाय सेइंग इशू डायरेक्शन. टू प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट इन सर्टेन केसेस, टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल स्पेकुलेशन. बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर चाहें तो हम लोग, टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल स्पेकुलेशन, अगर चाहें तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को प्रोहिबिट भी कर सकते हैं सर्टेन केसेस. टू ग्रांट इम्यूनिटी. अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर किसी भी वायलेशन की एलिगेशन लगाई गई है, एनी पर्सन हु इज एलिज्ड टू हैव कमिटेड सम एक्ट, वो व्यक्ति अगर ट्रू एंड कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन हमको दे देता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको इम्यूनिटी दे सकती है. लेकिन कभी भी इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी अगर एक व्यक्ति के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया. एंड लास्ट इज टू डेलीगेट और टू मेक रूल्स. तो यहां पर सिंपल सा आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपनी पावर डेलीगेट कर सकती है आरबीआई या सेबी को, और ये लोग चाहे तो रूल बना सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट. एंड दीज आर पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. एंश्योर कि जब पूरे चैप्टर को रिवाइज करो, सारी एक बार पावर रीड करो, जरूर करो. सारे पावर्स को रीड करते ना, दैट्स इट. ये पूरा अगर सारे पावर्स आपको कंठस्थ रटने की आवश्यकता नहीं है, बट रीड हमेशा करना है सारे पावर्स को. फिर आता है हमारा नेक्स्ट, पावर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की पावर की बात करते हैं, दो ही पावर इनके पास में. पहला, दे कैन मेक रूल्स रेस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट, लाइक they can say one man one vote irrespective of the number of shares and proxies are not allowed. These are two most popular examples. फिर आता है to make bylaws. तो स्टॉक एक्सचेंज के पावर के खुद के bylaws बना सकते हैं. ये दोनों पॉइंट में उनको फुद्दू बनाया है. पहला पॉइंट में कहा कि वो अपने रूल बना सकते हैं, दूसरे का अपने bylaws बना सकते हैं. ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर में एक पावर था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक और अमेंड रूल्स. तो स्टॉक एक्सचेंज जो रूल बनाएगा
सेंट्रल गवर्नमेंट उसे चाहे तो अमेंड कर सकता है, नए रूल बना सकता है। सर लेकिन स्टॉक एक्सचेंज बायलॉस बना सकता है? अरे रुको ना, सेबी जब चाहेगा सेबी कैन मेक और अमेंड बायलॉस। साथ में सेबी हैज द पावर टू एडजुडिकेट एंड सेबी आल्सो हैज द पावर टू मेक रेगुलेशन। ये तो आप भूल नहीं सकते, पूरा सिलेबस सेबी की रेगुलेशन से भरा पड़ा है। तो सेबी हैज द पावर टू मेक रेगुलेशन एंड सेबी हैज द पावर टू एडजुडिकेट। ठीक है सर, इजी पीजी। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, दैट इज पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। ये क्या बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं अगर कभी भी कोई कंपनी, चार्ट पे आएंगे बट उसके पहले दिमाग में चार्ट आना चाहिए, कभी भी अगर कोई कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है तो कंपनी क्या करती है? सिक्योरिटीज ऑफर करने के पहले, प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले अप्लाई करती है फॉर अप्रूवल टू स्टॉक एक्सचेंज। एप्लीकेशन दी, सिक्योरिटीज ऑफर कर दी, पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कर दी, पब्लिक ने अप्लाई भी कर दी, लेकिन कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकता जब तक क्या नहीं होता? परमिशन नहीं आती है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो जाती है। यहां पे अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो आप अलॉटमेंट कर दोगे, हैप्पी गो लकी। लेकिन अगर मान लीजिए एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, यू हैव टू रिफंड ईच एंड एवरी पेनी बैक विद इन 8 days. If you are unable to refund within 8 days, you will have to pay interest at the rate of 15% per annum. एंड इसके लिए कंपनी के साथ में उसके प्रमोटर डायरेक्टर भी पर्सनली लायबल होंगे। वेरी क्लियर, इजी। इसी के साथ कनेक्टेड एक और टॉपिक आता है कि अगर कभी स्टॉक एक्सचेंज ने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, यू कैन मेक एन अपील टू SAT. The appeal has to be made within 15 days. SAT can do 3 things. He can either confirm, modify or set aside the order of stock exchange. SAT will make all the endeavor to try and resolve the issue within a period of 6 months. Are we getting a fair idea? चलो रुकते हैं। ये था, यहां पे पूरा चार्ट था सिंपल कि हमने यहां पर ऐसा पढ़ा था कि बेटा जी सबसे पहले स्टेप 1 में एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग की जाती है, यहां पर फिर स्टेप 2 के अंदर आप ऑफर कर देते हो, स्टेप 3 में उनका एप्लीकेशन भी आ चुका है। लेकिन अब हम रुकते हैं, या तो अप्रूवल एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। एक्सेप्ट हो गया तो हम अलॉटमेंट कर देंगे, रिजेक्ट हो गया तो हमको रिफंड करना पड़ेगा विद इन पीरियड ऑफ 8 days, और 8 days में नहीं कर पाया तो 15% पर एनम के हिसाब से हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसके लिए जॉइंटली और सेवरली हमारे इश्यूअर, डायरेक्टर, ट्रस्टीज वगैरह लायबल होंगे। आर वी गुड हियर? डैम इजी। इसी बात में आगे बढ़ते हैं। ये हमने वैसे ही पढ़ लिया वैसे कि स्टॉक एक्सचेंज अगर कभी भी रिजेक्ट किया तो आप अपील कर सकते हैं 15 days। सैट क्या कर सकता है? कंफर्म, वेरी या सेटिस्फाइड कर सकता है। सैट को कोशिश करनी है कि जो भी ऑर्डर वो पास करता है वो विद इन 6 months करने की कोशिश करे, और साथ में उसकी एक कॉपी सेबी और पार्टीज को दी जाती है। ओ यस, उसके बाद में बात करते हैं हम पेनल्टीज की। पेनल्टीज को मैंने आपको कहा कि आपको शुरुआत में याद करने की कोशिश नहीं करनी है, एकदम आराम से, जितना याद रहता है उतना अच्छा है। पूरा सिलेबस होने के बाद में हम देखते हैं पेनल्टीज को लास्ट में याद करने की कोशिश करते हैं। इस पे हार्डली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो 1-2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, बट हमने क्लास में इनको याद करने की कोशिश की है। चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश पीरियोडिकल रिटर्न 5 lakh to 25 crore। उसके बाद में पेनल्टी टू not being able to comply with listing condition 5 lakh to 25 crore। excess dematerialization 5 lakh to 25 crore। तो ये 3 पेनल्टी के लिए 5 lakh to 25 crore है। ओके डन। उसके बाद में 3 पेनल्टी बीच में आती है, पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन और रिटर्न 1 lakh per day up to maximum 1 crore। पेनल्टी फॉर फेलियर by any person to enter into agreement with client 1 lakh per day up to 1 crore। and last penalty for failure to address investor grievances 1 lakh per day up to 1 crore। फिर 2 चीजें बच जाती है, एक अगर सेग्रीगेट करके नहीं रख सकते सिक्योरिटी को, या फिर जहां पे कोई भी सेपरेट पेनल्टी नहीं दे रखी है, फ्लैट 1 lakh to 1 crore। ये पूरा पेनल्टी के प्रोविजन है। चलिए अब ये पेनल्टी के अंदर दे रखी है रेंज। इसमें एडजुडिकेटिंग ऑफिसर किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डिटरमिन करेगा कि एग्जैक्ट पेनल्टी का अमाउंट क्या करना है? बोलो। फर्स्ट, disproportionate gain or unfair advantage। second, amount of loss caused to investor। and third, repetitive nature of default। चलो हमने एक बार पेनल्टी का अमाउंट लगा भी दिया, उसके बाद में अगर वो एक पे नहीं कर रहा है तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या कर सकता है? 5 चीजें, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अरेस्ट ऑफ द पर्सन एंड डिटेंशन इन प्रिजन, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। आर वी ऑल हियर? डैम इजी। चलिए ये जो पैसा पूरा लेते हैं वो कहां जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ओके ओके ओके। स्पेशल कोर्ट के बारे में 5 चीजें बतानी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन क्रिएट स्पेशल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ स्पीडी ट्रायल। यहां पर अपॉइंट किया जाएगा एक सिंगल जज, ही विल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कॉन्करेंस विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, ये जो व्यक्ति होगा जज, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। अपील फ्रॉम स्पेशल कोर्ट विल लाई टू हाई कोर्ट, एंड व्हाट विल अप्लाई? CRPC 1973 विल अप्लाई। वंडरफुल। इसके बाद में एक पार्ट ड्यू है,
और इसके बाद में हम लोग सीधे पहुंचते हैं सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स में। हमें सबसे पहले दिमाग में क्लियर होना चाहिए बेटा जी कि एक रिश्ता होता है दादा और पिताजी का, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी विद स्टॉक एक्सचेंज, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज, और एक रिश्ता होता है स्टॉक एक्सचेंज एंड कंपनी का, ये अलग है। ये हो गया पापा और बेटे का रिश्ता, ऐसा। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं, हमने बात कर ली अबाउट stock exchange getting recognized, that is done. Now we're talking about companies getting listed on stock exchange. चलो अब हम बात करें, अगर किसी भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना है, उसका डिटेल प्रोसीजर हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। आपको एक ब्रीफ आइडिया देते हैं कि द कंपनी, द पब्लिक कंपनी हैज टू मेक एन एप्लीकेशन along with documents to recognize stock exchange, and the stock exchange, if it is satisfied with respect to two things, that AOA of the company has all the required clauses and company complies with minimum public shareholding, तब जाके वो लिस्टिंग परमिशन दे देते हैं। डॉक्यूमेंट्स में भर भर के डॉक्यूमेंट देना है, आपका एओए, आपका एमओए, आपके पिछले जितने भी साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस शीट से वो सब देने हैं, जो भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपने एग्रीमेंट किए हैं, सब की सब आपको यहाँ पर देने होते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। अब आता है यहाँ पे कि ये कंप्लाई, stock exchange should be satisfied with two things. One, that AOA में सारे requisite clauses हैं and you are complying with minimum public shareholding. यहाँ पर आता है topic of minimum public shareholding. What is this? Every company which is coming up with a public issue, उसको ensure करना है जो listing के लिए आ रही है कि उसका minimum public shareholding complied हो। Minimum public shareholding क्या होता है? आपकी capital पे depend करता है कि आपको कितने shares public को देके रखने हैं। If your capital is up to 1600 crore, you have to give 25% to public. If your capital is 1600 crore to 4000 crore, 400 करोड़ should be with public, and अगर आपका कैपिटल है 4000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक, 10% with public, और 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कैपिटल है, then you have to keep 5% with public. Why it is reducing? Because आपकी कंपनी अगर इतनी बड़ी है, उसका 5% भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उतना भी पब्लिक को दिया तो चलेगा। This is known as minimum public shareholding. This is known as minimum offer to public. This is known as continuous listing agreement. ये इसी के अलग अलग नाम है। चलिए जबरदस्त। और इसके साथ में इस बुक का जो लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज में डीलिस्ट द सिक्योरिटीज इफ एनी ऑफ दीज पॉइंट्स हैपन। इनमें से कोई भी चीज होती है तो स्टॉक एक्सचेंज का डीलिस्टिंग का राइट आ जाता है। इसकी मेमोरी टेक्निक क्या थी? मसला। अगर मसला हो गया तो कंपनी डीलिस्ट हो सकती है, अगर मसला हो गया तो कंपनी डीलिस्ट हो सकती है। एम, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वॉयलेट हो गई। ए, एड्रेस, रुकना, 3 एरो आना चाहिए। एड्रेस नॉट नोन है, एड्रेस फॉल्स है, या एड्रेस आपने चेंज कर दिया इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट, तो आपकी कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। मसला एस, सस्पेंडेड फॉर मोर देन 6 months। मसला एल, लॉस फॉर 3 years एंड नेगेटिव नेटवर्थ। ये एक ही पॉइंट है कि आपके 3 साल से लॉसेस है और आपकी कंपनी का नेटवर्थ हो चुका है नेगेटिव। मसला ए, लास्ट ए स्टैंड्स फॉर अगर एक्ट, रूल, रेगुलेशन को आपने वॉयलेट किया है और आपके ऊपर फाइन लगा है 1 करोड़ से ज्यादा, या फिर इंप्रिजनमेंट हुआ है 3 years से ज्यादा, तो इस केस में भी आपको डिलिस्टिंग कर सकते हो। एक पॉइंट जो यहां पे कवर नहीं होता, दैट इज इफ द शेयर्स आर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड फॉर 3 years। 3 साल तक अगर शेयर्स इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, इनमें से कोई भी पॉइंट आ गया तो आपकी कंपनी को डिलिस्ट किया जा सकता है। आर वी गुड हियर? चलिए रुक जाओ। इसके साथ में ये भी बात कर लेते हैं एक और छोटे मोटे टॉपिक्स, जैसे कि इफ द कॉन्ट्रैक्ट्स इन नोटिफाइड एरियाज कैन दे बी टर्म्ड एज इलीगल। यस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी लगता है कि कुछ एरियाज में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को कुछ समय के लिए, देखना शायर क्या बोल रहा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लगता है कि कुछ एरियाज में कुछ कॉन्ट्रैक्ट को कुछ समय के लिए, सर्टेन एरिया, सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इलीगल डिक्लेयर करना है, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। फर्स्ट, एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग फ्लोर पे काम नहीं हो रहा है, हम स्टॉक एक्सचेंज के बाहर, एक एग्जिस्टिंग प्रीमाइस के बाहर एक और एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर बनाना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, दैट इज टर्म्ड एज एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर, वो भी स्टॉक एक्सचेंज बना सकता है। फिर आता है मेंबर में नॉट एक्ट एज प्रिंसिपल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। याद करो, अगर आप क्लाइंट है, आपका जो ब्रोकर है वो खुद शेयर्स खरीदना चाहता है, if the member wants to buy shares as principal, he has to ensure that he communicate this fact. उसको ये चीज कम्युनिकेट करनी, सामने वाले की कंसेंट लेनी है, फिर ही वो एज अ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है। अगर उसने सिर्फ ओरल कंसेंट लेकर ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया है, तो विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 3 days उसको उससे रिटर्न कंसेंट लेनी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पॉइंट। उसके बाद में लास्ट आता है रिकवरी अमाउंट बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। इसमें कुछ रिश्ते नाते दे रखे हैं कि अगर मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से पैसा रिकवर कर रहे हैं और उस व्यक्ति ने अगर पैसा ट्रांसफर कर लिया अपने स्पाउस, अपने माइनर चाइल्ड, माइनर ग्रैंडसन,
अपने बहू, ऐसे कुछ रिलेशनशिप यहाँ पे लिख रखे हैं कि इसके इनके अगर फेवर में उसने अमाउंट ट्रांसफर भी कर दिया है आफ्टर द सर्टिफिकेट वाज मेड, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो भी उनसे वापस ली जा सकती है. एंड दीज वर ऑल अबाउट द टॉपिक्स अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? इस वीडियो को अगर आप जब समय मिलता है, जब आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तब बैठ के देख रहे हो, आप बाइक से आ रहे हो अपने ईयरफोन में लगा दिया, जब जब टाइम मिल रहा है वीडियो भी देखते रहेंगे तो आपको सारे टॉपिक्स धीरे धीरे कंठस्थ हो ही जाएंगे. जो ऐसा लगता है ना कि अपने सीधे 2 महीने बाद टॉपिक दिखा रही है, पढ़ा भी था कि नहीं, वो नहीं होगा अगर बीच में आप 10-10 मिनट के वीडियो भी देख रहे हैं. दीज आर क्विक रिविजन. आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस. चलिए.